محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع سخن پروجیکٹ سائیکل ہے۔ پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارے پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہم پلان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ پلان، پروگرام اور پھر پروجیکٹ۔ پروجیکٹ کے آگے ٹاسکس ہو سکتے ہیں۔ پروجیکٹ ہماری پلان میں تیسرے نمبر پر ہے اور اس کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہم مختلف کام کرتے ہیں، ان میں انسانی اور مادی سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس کے ٹارگٹس مقرر کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سادہ اور پیچیدہ ٹاسک ہو سکتے ہیں جو ایک بندہ یا ایک سے زیادہ اشخاص مل کر کرتے ہیں، گویا ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا جو پلان ہے وہ ایجوکیشن فار آل ہے اور اس میں ہم مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا جو پروجیکٹ ہے کہ ماں باپ کے پاس جانا تاکہ ان کو ہم مائل کریں کہ وہ بچوں کو اسکول لائیں، بچوں کا اسٹائپنڈ مقرر کرنا، بچوں کو کاپیوں کتابوں کی فیسلٹی مہیا کرنا، بچوں کو لنچ مہیا کرنا۔ یہ جو تصویر ہے یہ ہمیں پروجیکٹ سائیکل کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم پروجیکٹ سائیکل میں کیا کام کرتے ہیں یا اس کے کیا اجزاء ہیں۔ اس میں ایک تو سیکٹر انالیسز ہے، دوسرا پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پروجیکٹ پریپریشن ہے، پروجیکٹ اپریزل ہے، پروجیکٹ ایگزیکیوشن اینڈ کنٹرول ہے اور پروجیکٹ ایویلیویشن ہے۔ ہم سیکٹر انالیسز کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس پروجیکٹ کے متعلقہ حالات کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم سووٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اندرونی اسٹرینتھ کیا ہے، یعنی ہم جو کام کرنے رہے ہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہیں گے، ہمارے پاس کون کون سی اپرچونٹی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خطرات لاحق ہیں، یعنی ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز کون کون سے ہیں جو اس پروجیکٹ کو کامیاب نہیں ہونے دے سکیں گے۔ اس میں ہماری کمزوریاں بھی ہیں، یعنی پروجیکٹ کمزور ہے، وسائل کی کمی ہے، مادی وسائل کی کمی ہے، انسانی وسائل کی کمی ہے، یا ہمارے ٹارگٹس سبجیکٹیو ہے، یعنی ہم اپنی خواہشات پر اپنے ٹارگٹ متعین کر رہے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے اس کے پاس مطلوبہ سکلز نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمیں تھریٹس کیا ہیں، یعنی وہ کیا حالات ہیں جو ہمارے موافق نہ ہیں۔ گویا ہم صورتحال کا ایک بھرپور جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جائزہ ڈیٹا اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آبجیکٹیوٹی کا عنصر بنیادی عنصر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم سبجیکٹیو خواہشات کے اسیر ہو جائیں۔ ہمارا دوسرا جو جز ہے وہ پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ ہمیں اپنے پروجیکٹ کی خوب سٹڈی کرنا ہوگی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کیا حالات میسر ہیں، اس میں ہمارے وسائل وہ مادی ہوں یا انسانی ہوں کیا ہیں، ان وسائل سے کیا ہم اپنے ٹارگٹس حاصل کر پائیں گے، اور کیا متوقع حالات و واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمارے پروجیکٹ کی کامیابی یا ناکامی جڑی ہوئی ہے۔ پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشنز کے لیے کچھ بنیادیں ہیں جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو پروجیکٹ بنائے ہیں، مثلا ماں باپ کو مائل کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو کام کی بجائے اسکول بھیجیں، بچوں کا کوئی اسٹائپنڈ مقرر کرنا،
या बच्चों को कापियां किताबें मुहैया करना, क्या उनकी ज़रूरत है या उनके बगैर भी हमारा काम चल सकता है, या हमें मज़ीद प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को स्कूल में लंच का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे मुखालफ कौन कौन से हालात हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, लेकिन ये जायज़ा डेटा की बुनियाद पर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमती मामलात पर सूबाई मामलात और इलाकाई मामलात तो हायल नहीं होंगे। अगर हायल होते हैं तो उनका हमें क्या हल करना है। फिर हम सरमाए को पेश नज़र रखते हैं, इंसानी और मादी दोनों किस्म के सरमाए को पेश नज़र रखते हैं, उनकी मौजूदगी को पेश नज़र रखते हैं, इंसानों की महारतों को पेश नज़र रखते हैं, इस प्रोजेक्ट पर उठने वाले अखराजात को पेश नज़र रखते हैं और उन अखराजात की मौजूदगी या तफसील को भी पेश नज़र रखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आउटपुट या आउटकम क्या होगा, यानी क्या हम अपने टारगेट हासिल कर पाएंगे या इसका हमारे समाज पर क्या असर होगा और वो क्या असरात होंगे जो हमारे मुवाफिक होंगे या मुखालिफ होंगे। गोया हम अपने मकासद, टारगेट्स और मुतबादलात को पेश नज़र रख कर अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी नोक पलक संवारेंगे। इसके लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और फिर हम अगले कदम के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि प्रोजेक्ट प्रेपरेशन का कदम है। प्रोजेक्ट प्रेपरेशन ये इस सारे अमल में बहुत ही अहम स्टेज है। इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है, इसके लिए पीयर रिव्यू की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ अशखास की रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। इन बुनियादों पर हम अपने प्रोजेक्ट की नोक पलक संवारते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के अज्जा होते हैं, इसमें हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ज़रूरियात का जायज़ा लेते हैं, उसमें हमें कौन सी तकनीकी महारतों की ज़रूरत है, कौन सी ऑपरेशनल महारतों की ज़रूरत है, कौन सी माली ज़रूरतों का मसला है, कौन सी माहौलियाती ज़रूरतों का मसला है। इन सब के हवाले से हम अपनी तफसीलात तय करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्ट अप्रेजल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है वो ये देखता है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं ये वायबल है या नहीं। इसकी वायबिलिटी को जज करने के लिए हमारे पास कुछ बुनियादें हैं। सबसे पहले तो हम इसकी मुआशी बुनियाद का जायज़ा लेते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या ये समाज में मुआशी तरक्की के लिए एक इम्पटस का काम करेगा, क्या इसका समाज में इम्पैक्ट होगा या नहीं। नंबर 2, माली बुनियादों पर जायज़ा देखता है कि हम जो अखराजात करने जा रहे हैं उनके मुताबिक हमें इसका आउटपुट या आउटकम मिलेगा या नहीं, यानी क्या हम अपने मकासद हासिल कर पाएंगे। तकनीकी पहलुओं में हम जायज़ा लेते हैं कि क्या प्रोजेक्ट वायबल है, इसके लिए जो इंसानी सरमाया लगाया जा रहा है वो मतलूबा सलाहियतें रखता है या नहीं। और उसके बाद हम इसका माहौल के ऊपर असरात का भी जायज़ा लेते हैं, यानी ये हमारे समाज में बेहतरी लाएगा या नहीं, यानी इसका आउटकम कोई होगा या नहीं। और आखिर में हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसकी ज़रूरत है या नहीं, क्या इसका कोई मुतबादल इससे बेहतर हो सकता है। जायज़ा लेने के लिए एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये है कि वो देखता है कि क्या हम अपना जो प्रोजेक्ट है इसको मतलूबा अरसा में
फ़ायदा मंद बना पाएंगे। ये हमें मतलूबा अरसा के बाद फ़ायदा देना शुरू कर देगा, यानी कि इसका पे बैक पीरियड कितना होगा, ये फ़ायदा अपने टारगेट्स के मुताबिक देगा या नहीं, ये फ़ायदा वक़्त के साथ बढ़ेगा या नहीं, और सबसे अहम बात, समाज में इससे क्या बेहतरी आएगी। सो इस तरह जो सारी चीज़ें हैं, हम उसको अप्रेजल में रख कर किसी भी प्रोजेक्ट को अवेल्यूएट करते हैं, ताकि जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए फ़ायदा मंद होना चाहिए। अब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ये एक बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है। इसके लिए लंबा अरसा दरकार होता है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर समाज में लाती है। इसमें हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है और उसका आउटकम क्या होगा, क्या वो समाज में बेहतरी लाएगा, क्या समाज की सलाहियतों में इजाफा करेगा, और अगर इजाफा करेगा तो वो मुल्क की मतलूबा जीडीपी में इजाफा का बायस होगा। क्या इससे हम मादी आसाइशों को हासिल कर पाएंगे जिनकी ख्वाहिश हर फर्द करता है। गोया एग्जीक्यूशन में हम इंसानों की तिश्ना ख्वाहिशात को मुहैया करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, इसमें हम दो चीज़ों को पेश नज़र रखते हैं। एक तो यह है कि हम अपने प्रोजेक्ट की तकमील और बेहतरीन तकमील को मद्देनज़र रखते हैं, ताकि हम इससे मतलूबा नतायज यानी कि आउटपुट और आउटकम हासिल कर पाएँ। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम काम है वो ये है कि हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। क्या ये अपने मतलूबा रास्ते पर चल रहा है? अगर ये अपने रास्ते से हट रहा है तो हम इसमें करेक्टिव मेजर लाएं। हम ये पेश नज़र रखते हैं कि क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। अगर ये अपने अहदाफ हासिल नहीं कर रहा तो उसके लिए भी हम करेक्टिव मेजर्स लाते हैं। दूसरा जो इसका काम है वो मॉनिटरिंग का है। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट हमारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, जो हमने टारगेट मुकर्रर किए थे क्या वो हासिल कर रहा है, जो हमने तरीक़ाकार मुतय्यर किया था क्या उसके मुताबिक ये प्लान चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर तो ये इसी तरह है तो फिर हम इसे चलते देंगे। हाँ, अलबत्ता मज़ीद बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, और यकीनन ऐसा नहीं होता, तो फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। इससे पहले कि हम मुतबादल प्रोजेक्ट का सोचें, हम इसी में कोई तब्दीली कर सकते हैं। मादी वसाइल में कोई तब्दीली कर सकते हैं, माली वसाइल में कोई तब्दीली कर सकते हैं, ताकि हम बेहतरीन आउटपुट और आउटकम हासिल कर पाएँ। इसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट एवेल्युएशन की तरफ। क्या ये हमें बताता है कि हम अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स के साथ चल रहे हैं या नहीं, और जो हमने मकासद तय किए थे क्या वो हासिल कर रहे हैं या नहीं। इसमें हम दो सतहों पर एवेल्युएशन करते हैं। एक सतह वो है जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो हम उसका जायज़ा लेते हैं, इसको हम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एवेल्युएशन कहते हैं। ये वो मौका होता है जब गेम हमारे हाथ में होती है और हम इसमें करेक्टिव मेजर्स लेकर अपने प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक रख सकते हैं। दूसरी सतह वो है जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका होता है, फिर जो एवेल्युएशन होती है उसको हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एवेल्युएशन का नाम देते हैं। ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एवेल्युएशन जो होती है, इससे हम मुख्तलिफ सबक सीखते हैं, ताकि हम मुस्तकबिल में इस तरह का अगर प्रोजेक्ट करना चाहें तो हम गलती ना करें। ये जो प्रोजेक्ट एवेल्युएशन होती है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम एवेल्युएशन करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट सही समत में जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी
प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन के हवाले से इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसमें हम टीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, हम प्रोसेस का जायज़ा लेते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या हमारी टीम के पास मतलूबा स्किल है या नहीं, क्या जो प्रोसेस तजवीज़ किया गया था इसके मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो हमें इसमें करेक्टिव मेजर्स करनी होंगी। फिर हम इसमें अखराजात को पेश नज़र रखते हैं, क्या हमने जो बजट बनाया था हमारा प्रोजेक्ट उस बजट के अंदर ही चल रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना पैसा गलत जगहों पर लगा रहे हैं जिससे मतलूबा नतायज हासिल होने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। लिहाजा हम अपने अखराजात को उन टास्क पे लगाएंगे जिससे हम मतलूबा नतायज हासिल कर पाएँ। फिर हम अपनी गलतियों का भी जायज़ा लेते हैं, हम देखते हैं कि हमने प्लानिंग या अमल में क्या क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ गलतियां की, और ये जो गलतियां हैं हम ऑन गोइंग एवेल्यूएशन में देख पाते हैं और फिर हम वहीं पे इसकी करेक्शन भी कर देते हैं। और आखिर में हम आखिरी जायज़ा लेते हैं जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं क्या इसने मतलूबा अहदाफ हासिल किए हैं, टीम की कारकर्दगी कैसी रही है, अखराजात में कमी पेशी या कोताही तो नहीं हुई, इसका आउटपुट और आउटकम हमारे अहदाफ के मुताबिक हुआ है या नहीं। इस आखिरी जायज़ा में हम बेशुमार सबक सीखते हैं और फिर उसे अपनी इज्तिमाई सोच और इल्म का हिस्सा बनाते हैं ताकि मुस्तकबिल में गलती का इम्कान कम से कम हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।